तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो स्पेशली होम मेकर्स के लिए वर्क करती है। सो यू नो होम मेकर्स आज के समय में कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, वो बस चुपचाप काम कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में जो उनको एक हैप्पीनेस दे पाए। एंड हमारे जो आज की गेस्ट है वो इसी की चीज पे काम करती है, वो इसी के बारे में डिस्कस करती है कैसे बिना होम मेकर आप अपनी एक लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ का पर्पल फाइंड कर सकते हो और थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हम थोड़ा जानेंगे उनसे कि क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे थोड़े से ट्रिक्स हम निकालेंगे उनसे। सो गेस्ट इज करिश्मा अरोरा मैम, सो वेलकम मैम। Thank you, Drishti. Thank you so much. अमेजिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग ना आई वांट टू नो कि व्हाट्स योर जर्नी, आपकी जर्नी क्या है, हाउ यू फेल्ट लाइक कि आपको एक होम मेकर से इनटू कोचिंग इंडस्ट्री आपने फील लाइक यू गॉट इनटू द इंडस्ट्री। All right. So, being a homemaker, I realized that, all the problems that I faced basically, whether it was. So, for me, the core value of me is family. I agree to it. I want to, be with my family. I want my relationships to be striving. But along with that, I wanted to build my own identity as well. But in the process of being a homemaker, taking care of your family, taking care of your kids, what happens is all your desires of your my identity, my passions, my dreams go on a hold. And while I was working, with one of my coaches, I realized that this is a place where I don't want to be, and it takes a lot of guts. It takes a lot of effort to get out of the homemaker identity to a working professional, to an entrepreneur, to be a person who is known for her name. Right. And once I achieved it, I you know felt that it is a need of an hour in this era where everybody is working and working and working. There are these homemakers who are tagged as you are just a homemaker, Right. and that the reality is they are doing a lot while they are sacrificing their own dreams and desires to be something else. And Right. that is something that I could really I have felt that, and I do not want anybody else to feel it. करा ही क्या है Wow. जिंदगी में, एक होममेकर ही तो हो, बच्चे ही तो पाले हैं. That is the Right. pain that I am catering to right now. वाओ! दैट मीन्स कि एक तो होता है ना कि होममेकर आर द मोस्ट इग्नोरेंट एरिया पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, Absolutely. कि उनसे सब काम करवा लेते हैं बट उन जब कोई डिसीजन लेना हो, कुछ करना हो तो कोई उनको इन्वॉल्व नहीं करता। और वहीं से कहीं न कहीं एक अनवर्दी, अनसीन वाली जो फीलिंग आती है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आपने वो चीज़ नोटिस की कि ये चीज़ हो रही है, मैं खुद में ये चीज़ फील कर रही हूँ। एंड यू सेड लाइक अब मैं इसको नहीं चाहती कि कोई और इस चीज़ को सफ़र करे। And that's how the journey always begin. So amazing. लेकिन I want to know from your personal journey कि आपने क्या-क्या challenges face किए जब आप वो shift कर रही थी, और आपके जो clients हैं उनमें आप क्या-क्या challenge face करते हो? तो मेरे लिए the biggest one was that my husband never wanted never wanted a working wife. That Right. was the biggest challenge for me. And I remember when I started working with one of my coaches, and we started having fights and everything. And when I spoke to my sister-in-law as well, तो उन्होंने मेरे को बड़े आराम से कह दिया, उसको तो कभी वर्किंग लेडीज लड़की से शादी करनी ही नहीं थी. He always wanted a Right. homemaker, and that was my biggest challenge. And now that is my biggest strength. He is the one who supports me massively. He is the one who uh, asks me every single day ki, what sessions do you have, are you busy, what are the timings that you are busy. And you see the cup of tea, he sent it to me. I was working Wow. here
in my workplace, and he has sent it to me that please have some tea. It's been long that you're working. So that Oh is the my kind God. of shift that I have seen, and that shift starts with the mindset shift. Hmm. When I started working on my mindset, I felt that I was very, I had too many doubts about myself. I I had lots and lots of limiting beliefs that I'm not worthy. I got married really early, तो मेरी पढ़ाई मैंने पूरी नहीं करी है, Hmm. और all these kind of things always, always, always ate up all my energy, Right. and I started feeling that, oh, all right, my husband does not want a working woman, तो मैं तो कभी कुछ Hmm. कर ही नहीं पाऊंगी जिंदगी में. Right. So, but when I overcame all of it, I started seeding in my husband that, I want to work, and now he's absolutely comfortable. He's happy that I'm working, and that's it. Wow. तो होम मेकर्स, जब होम मेकर्स की बात करते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपने ऊपर. मैं 40-50 साल की हो गई हूँ, मैं काम कैसे करूंगी? सी, Hmm. होम मेकर्स के पास जब तक उनके बच्चे कॉलेज में नहीं चले जाते तब तक तो इस सब सोचने की फुर्सत भी नहीं होती है. दे आर लाइक, Right. हाँ हाँ, काम करो, काम करो, काम करो भैया, बच्चों को खाना देना है, लंच पैक करना है, हस्बैंड ने जाना है, उसका लंच पैक करना है. बट देयर इज अ टाइम, वो कहते हैं ना, मिड 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 लाइफ क्राइसिस. Right. दैट इज व्हाट Right. हैपेंस. 35 Hmm. के पास हिट करते ही यू आर लाइक, यार मैं जिंदगी में क्या कर रही हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं. एंड और सबसे ज्यादा आग तब लग जाती है जब somebody else comes and tells, तू तो सिर्फ होम मेकर है, तूने किया क्या जिंदगी में? Right. Then it Hmm. becomes like, oh my god. वाओ! मतलब कहीं न कहीं लेकिन वो किसी के बोलने के कारण ही आप जब स्टार्ट करते हो तो वो एक एब्सोल्युटली, अलग एब्सोल्युटली. मैं तो अभी तो थैंकफुल, अगर मेरे को जिंदगी में किसी ने अगर ऐसा कुछ बोला, आई एम तो हैप्पी, आई एम सुपर थैंकफुल टू दैट पर्सन दैट उन्होंने बोला, एंड नाउ आई एम देयर, आई एम हियर, आई एम वर्किंग. And thanks to my husband, tons and tons of thanks to him that he's supporting me. Agar राइट, there is, even if there is, see, we have been, um, women like me have spent around 15-20 years being a homemaker, राइट, and husband को सिर्फ यही पता है कि सारे पिछले 20 साल इसने क्या किया है. हुँ, He does not know what is in your head, what are you planning to do with your life, and where is राइट, it that you are seeing yourself. तो हुँ, उसकी वजह से it is very difficult for the spouse also to support you, but if you राइट, have a good man in your life, he's going to support you. वाओ! बट कहीं न कहीं वो आपकी ही एनर्जी थी जो उनको शिफ्ट लाई। मतलब पहले तो वो रेडी नहीं थे ना, वो नहीं चाहते थे काम कर क्योंकि वर्किंग मतलब जो उनकी वाइफ है वो वर्किंग। बट इट वाज़ योर एनर्जी, योर एफर्ट्स कि उन्होंने भी खुद को बदला कि नहीं मेरी वाइफ अगर खुद पे काम करे तो मुझे भी करना चाहिए। Absolutely, no, 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 it's not that way. I would put it, तुम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो. You start changing your energy, you start changing your frequency. If your man is meant to be with you, he will shift automatically. उसको अपने हुँ, ऊपर काम नहीं करने की जरूरत, he will अपने आप ही शिफ्ट, राइट, अपने आप को सपोर्टिव हो जाएगा. He will see the sincerity, he will see the commitment that you have for what you are saying, and he will start supporting you. राइट। अमेजिंग दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ भी चीज का स्टार्ट ना वो खुद से ही होता है कि अब जब वो It is खुद में फीलिंग always, आती है ना कि अब करना है it अब is छोड़ना है तो always you. It is always you. You cannot change even your kids. What do you talk? राइट You think you have the power of changing your spouse? All you need to work on is yourself, and things start वाओ shifting for you beautifully. अमेजिंग अमेजिंग सो इन बिटवीन वी वर टॉकिंग आपने एक वर्ड यूज किया लिमिटिंग बिलीफ तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाओ जो बेसिक से देख रहे हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग बिलीफ एंड कैसे उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता है So limiting beliefs are the inner chatter, I would say, that happens in your head all day long. हम्म यार मैं ये कैसे करूंगी, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, आई एम नॉट वर्दी, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मुझे क्या पता ये कैसे करना है. बट द थिंग इज दैट women are too smart. They are too smart, they know everything, they know every single thing.
because their intuition works, their guts work. Right. And लिमिटिंग बिलीफ पता है कैसे कैसे आते हैं? यार जिंदगी में आज तक नौकरी नहीं करी है, मुझे क्या पता लोगों के साथ बात कैसे करनी है. You Right. start talking and you will know that you are very comfortable talking with people. क्यों? क्योंकि सारी रिश्तेदारियां कैसे निभाई हैं, बातें तो करके निभाई हैं. So Right. I think homemakers are the smartest people. They can become the best coaches because they have been doing that all day long. They have been doing it all the time. They are the best servers to the society. देखो उन्होंने स्टार्ट अपने घर से किया है, but they are ready. If they want to work on themselves, they are ready to serve the world as well. Right. Right. तो So true. लिमिटिंग बिलीफ यही है. आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट आई कैन नॉट डू इट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम टू ओल्ड टू डू इट. दुनिया क्या कहेगी? दे हैव unlimited fears, fears of failure, fear of judgment, what are people going to say, मैं ऐसे बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी, हाय मैं ऐसे दिखूंगी तो क्या होगा. oh god, a lot of things. राइट. इवन आई थिंक ये इतनी ज्यादा आवाज भारी हो जाती है ना हमारे सर के अंदर कि हमने इसको मान लेते हैं. Absolutely. Because पता है क्या है, जब हम कहते हैं ना अपने आप को करिश्मा, you are amazing, you start believing in yourself. And once you start saying I am stupid, you start believing that as well. So whatever comes after the word I am, that becomes the reality of your life. So I think every homemaker, if anybody is listening out here, they should make sure that they stop using the negative vocabulary for themselves. True. For sure, that is going to bring a massive shift. So true. सो समवेयर अगर आप ऐसे कोच क्या गाइड कर सकते हो कि जो वॉइस है तो कैसे हम कम करें, एंड आपका जो कोचिंग कोर्स जो प्रोग्राम है जो आप स्पेशली होम मेकर्स के लिए ही डिजाइन करते हो, तो उसका क्या रोल आता है ये अपनी जो वॉइस है उसको कम करने के लिए, लिमिटिंग बिलीफ्स को कम करने के लिए? So the thing is that each time any limiting belief comes, that is coming to you because there is a story that you are telling to yourself in your head. Okay. Right. So all you need to do is, shift that story, make it an empowering story. So if I say, for my example, if I take my own example, I used to, keep saying that I got married early because of which I could not do anything in my life. Right. ठीक है, मेरे बच्चे जल्दी हो गए because of which मैं कुछ नहीं कर पाई जिंदगी में. Alright. So now what did I do to shift it to a empowering story? Right. I started telling myself कि करिश्मा, अगर जल्दी शादी नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कैओस हो चुका है ना दुनिया में कि क्या पता मेरा डाइवोर्स ही हो चुका होता. मैं इतनी छोटी थी कि मैं उस सांचे में जल्दी से ढल गई. तो that is a beautiful thing because now I have a husband, I have a rich man and in my life, and he can support me in whatever I want to do. ठीक है. दूसरा, जब मैं सोचती थी कि यार बच्चे भी हो गए और एक नहीं, I have 3 daughters. तो यार बच्चों को पालना कोई काम आसान थोड़ी ना है. And how will I do? I cannot do anything. I have to take care of the kids and this and that. But I reversed that story to, an empowering story by telling myself, by the age that I'm 40, all my kids are teenagers. That is such a blessing because they all are independent. Now I have all the time on the earth to spend on myself, to develop myself and, build myself up. So that is how, you create a story in your mind. So जो भी आपकी लाइफ की सैड स्टोरी है उसके अंदर बैठ के चेक करो कि क्या लेसन आपको लाइफ में मिला है एंड हाउ हैज इट सर्व्ड यू सो फार. अगर शादी हो गई थी जल्दी, इट वाज माय चॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीबॉडी. द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग एंड गिव blaming other people for whatever problems are there in your life, you start shifting. तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझ लो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड इन योर लाइफ. एंड उसके बाद अब वो स्टोरी को मैं अच्छा कैसे बना सकती हूँ. वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स. कितने बच्चों ने कितने मम्मा ने अपने बच्चों को बोला जल्दी से दूध पी लो नहीं तो बड्डा बाबा आ जाएगा तुम्हारे को मारेगा, वो डंडा लेके आएगा तुम्हारे को मारेगा.
रात को जल्दी से सो जाओ because now the we Willy Winky is going to come and take you away. Everybody knows Right, how to make stories. Now, right. what you do in your head is something that you need to work on. Wow, this is so powerful. अमेजिंग अमेजिंग दैट मीन्स कि आपके दिमाग में क्या स्टोरी चल रही है वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड पर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो ना, एक बात बताती हूँ आपको। अगर आप दिल में ये सोच रहे हो मैं कैसे काम करूंगी कैसे काम करूंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आई, विल यू वर्क ऑन इट? You will not take the opportunity. You will let it pass because you know that you cannot do anything about it. But हम्म। then you feel, start telling yourself that I can do it. उस दिन से आप देखना शुरू हो जाओगे जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, एटलीस्ट यू विल चेक कि यार इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, कैन आई टेक दिस अप और नॉट। एटलीस्ट ये सिचुएशन तो आनी जरूरी है ना कि कैन आई डू इट और नॉट। जब आप अपने आप को राइट यही मना के बैठ जाओगे कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है। राइट करेक्ट। और फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होने वाला है। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। एक बार फर्स्ट स्टेप ले लोगे तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप ले सकते हो। सबसे ज्यादा राइट रेजिस्टेंस शो होती है जब फर्स्ट स्टेप लेना होता है, बहुत डर लगता है। सो आई विल टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग एज एन इंडिपेंडेंट कोच, मुझे बहुत डर लगता था अगर मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगी, नीरज को पता चल गया, ही विल उसको गुस्सा आ जाएगा, वो मेरे को मना करेगा क्यों कर रही है क्यों कर रही है। एंड देन आई जस्ट आई सेड व्हाटएवर इट इज, लेट्स डू इट। राइट वो रेजिस्टेंस को और कोई तरीका था ही नहीं ब्रेक करने का। एंड व्हेन ही सॉ राइट दैट व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग इज एक्चुअली गुड वर्क, he was like, oh wow यार तू तो बहुत सही काम कर रही है। and he started supporting me. So वाओ दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर लो अपने माइंड को तो प्रिपेयर करो, साथ के साथ में एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप अगर आपको ये लग रहा है कि पूरा फियर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एक्शन लोगे तो वो नहीं होने वाला। perfection is zero thing. There is nothing called perfection. हम्म। जो वाओ इतने परफेक्ट मॉडल्स हमारे को दिखते हैं, दे ऑल्सो कीप ऑन गोइंग फॉर सम, ये रिंकल आ रहा है, ये बोटॉक्स कर लो, ये कर लो। There is nothing called perfect. Perfectionism is a myth, I would say. You राइट cannot you cannot live your life fully if you keep on waiting for perfectionism to happen. I राइट I say version 1 is better than version 9. कर लो, जो गलती भी करोगे ना, at least you will start learning from it. Never fear the राइट failures because every time you fail, you are learning that this is something that I need not do again. I will be better करेक्ट next करेक्ट time. करेक्ट एंड जैसे आप बता रहे हो वाइल टॉकिंग टू यू मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लॉट ऑफ होम मेकर्स आर गिवन दिस फीलिंग कि अगर वो प्रॉपर रेडी नहीं होंगी या प्रॉपर मेकअप नहीं करेंगे तो दे आर अनवर्दी, दे आर अनसीन, दे आर अनलव्ड। और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो फीलिंग है ना वो कहीं ना कहीं बचपन से ही दी जाती है बीइंग अ गर्ल यू नो। तो हाउ योर कोचिंग प्रोग्राम इज हेल्पिंग दीज फैक्टर्स, जो ये फीलिंग है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी या मोटी हो जाऊंगी तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। Self-worth, self-identity, self-love. Work on loving yourself. When you accept yourself, people around you will also accept you. If you have वाह pimples around in on your cheeks and you keep you know cribbing about it, हाय पिंपल हो गया हाय पिंपल हो गया, तो सामने वाला क्या बोलने वाला है? वो तेरे को तो पिंपल हो गया। हम्म। अरे मैं बोल ही नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन देयर ऑन द पिंपल, आई एम सेइंग ओ माय स्किन इज लुकिंग वेरी नाइस टुडे। व्हाट इज सामने वाला पर्सन गोइंग टू से? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। So whatever you राइट focus on expands. That is also another theory, right? जब जिस चीज के ऊपर राइट आप राइट फोकस करोगे तो start focusing on loving yourself enough, respecting yourself enough, so that people around you understand how to respect you, how to love you. So it is वाह also said, that how you treat yourself is a direction for other people to understand how to treat you. राइट राइट So राइट it's all in your hand. वाह
इट सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट आई वांट टू नो थोड़ा सा मोर कि आपका जो कोर्स है वो और क्या क्या कोर पार्ट को कवर कर रहा है फॉर ठीक अ है, होम मेकर। तो माय लेवल 1 जो है, जो लेवल 1 है उसके ऊपर आई वर्क ऑन माइंडसेट। माइंडसेट के राइट। अंदर आई आल्सो वर्क ऑन सो बीइंग अ होम मेकर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैव नॉट वर्कड ऑन आवरसेल्व्स। सबसे पहले करेक्ट। हम वर्क करते हैं सेल्फ लव पे, फिर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन हैव आवर ओन चॉइसेस, गोल्स, मिशंस इन लाइफ। ठीक है, राइट। फिर हम वो सेट करते हैं। while we set our missions, there is a problem of time management। लेडीज को, हम होम मेकर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यार मैं सारा दिन तो घर को देख रही हूँ, अभी मैं कैसे इसके लिए टाइम कैसे निकालूं। then we start राइट। working on that। ऐसे करके इट इज लाइक जैसे सुई धागे से पूरा वो निट करते हैं ना। आई हैव निटेड अ फुल 12 weeks journey, like 90 days journey as a level राइट। 1, wherein homemaker will be absolutely ready to soar higher। but the thing is, जब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हो ना, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज दैट आपके रिलेशनशिप्स डगमगाने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज यू विल सी कि यार हस्बैंड थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है कि तू टाइम वहां पे दे रही है। यू विल सी हम्म। किड्स टेलिंग यू, मम्मा आप तो मुझको अब टाइम ही नहीं देते हो, एंड एवरीथिंग। एंड इन हम्म। दोज मोमेंट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। So उसमें on level 2, in my level 2, I work on the relationship part, with your spouse, with your kids, with your friends, relatives, everybody. Plus there is a very important factor, that is communication in the relationships। I work focus अच्छे से in depth on communications, and राइट। I work on the emotional mastery part, कि आप कैसा फील कर रहे हो, और हाउ शुड यू नो बिल्ड योर सेल्फ इन सच अ वे दैट जो इमोशन, अगर नेगेटिव इमोशन आया है तो उसको आपने कैसे चैनलाइज करना है टुवर्ड्स द पॉजिटिव, हाउ टू टेक इट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एंगर है, डे बिफोर यस्टरडे ओनली माय डॉटर वाज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ये हो गया। मैंने कहा, सो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, व्हाट इज इट दैट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। मुझको बेक करनी है कुकीज, एक दिन तो मैं जरूर करूंगी। मैंने कहा, डू इट नाउ, अभी गुस्सा आ रहा है ना, अभी कर। एंड शी मेड ब्यूटीफुल कुकीज। so there are times when you can use that anger towards whatever goal you want to achieve। तो राइट। my mission is to hold them from where they are, to make them अच्छे से mindset अच्छा हो जाए, mentally, emotionally, relationship wise, and then financially free। And then the राइट। third level is to make them financially free। I am not saying that every woman needs to be a coach, but I know that every woman has some passion, some desire, some hobby that she wants to explore more. In that course, I will be taking them through towards that journey of exploring themselves and working on themselves to become something। So for example, one of my previous clients, she was 100% all-time homemaker। It has been 6 years of her marriage, and she was a homemaker, and she used to feel so unworthy and unwanted, in fact। and उसने क्या किया, she loved making laddu gopal ke poshak। and राइट। I was like, so she told me one day, Karishma, I want to become financially independent। and I asked her, what is it that you can do। वो कहती, मैं जॉब कर सकती हूँ, और जॉब नहीं तो फिर मैं कुछ तो आर्ट एंड क्राफ्ट में कर सकती हूँ। आई वाज लाइक, ऑलराइट, गुड। तो वी स्टार्टेड विद अ टाइम स्पैन वेयर इन 3 महीने में जॉब मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस पीछे से। जॉब मिल गई तो जॉब करोगे, नहीं तो उस दिन से तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। एंड now she's like she has her own from home small business, and she's thriving, she's happy, and she feels कि अब मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का कि यार मेरा पति तो मेरे को टाइम ही नहीं देता, क्योंकि राइट। उसके पास टाइम नहीं है। वाओ वाओ।
दैट मीन्स कि समवेयर अगर आपका खुद का आपकी जर्नी है, आपका खुद का एक पैशन और पर्पस आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका दिमाग ये फालतू जगह में नहीं जाता है कि दूसरे लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपका पति क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा ना होम मेकर्स कंप्लेन करती है, मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। घर आता है, फिर भी फोन देखता है, उसके बाद ये करता है वो करता है, और बस दिन तो ऐसे ही निकल गया। मैं सारा दिन इंतजार करती हूँ कि वो आएगा कि तो मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि women wants to talk a lot। एंड राइट। क्या होगा, हस्बैंड जब इतना काम करके घर आता है तो ही इज टायर्ड, ही वांट्स टू रिलैक्स, ही वांट्स टू स्टे काम फॉर सम टाइम। एंड बीवी को लगता है ओ गॉड, ये तो बंदा पता नहीं है मेरे हाथ से निकल गया, मेरे से बात नहीं करता, दिस एंड दैट। एंड जब आप खुद हम्म। बिजी हो गए, आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा होगा, यू विल बी लाइक हाँ यार मैं भी बहुत थकी हुई, चलो इसके साथ मैं भी चिलैक्स करती हूँ। वाओ, वाओ, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपना जर्नी खुद का होना आपके रिलेशनशिप को बेटर ही करता है। Absolutely, when the two whole people come together, they make a better, you know, a relationship wise they are so much better। अगर वाओ। आप if you are going into a relationship not being full yourself, you are going to suck away his energy। that is not a right राइट। kind of a relationship। You both need to be full at your own ends, then you come together, you be happy, both happy people come together, there is more happiness। एक सेल्फ किया हुआ एक हैप्पी है भैया, ये भी इसके भी हैप्पीनेस लेके चुरा लेगी। वाओ, वाओ, आई थिंक ये तो कुछ ज्यादा ही बेटर कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझने की नीड है। yes। एंड आई थिंक इस पे तो हम बस बात करते ही रहेंगे, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। बट आई हैव सीन यू, आपके एक बुक क्लब है, राइट? आई गेस मैंने बहुत बार स्टोरीज में देखा है। तो जो ये बुक क्लब है वो कैसे होम मेकर्स को हेल्प करता है उनकी जर्नी में बेटर करने में, क्या कनेक्शन है दोनों का? So basically book reading club I opened because I wanted to join a book reading club। एंड मैंने एक दो जगह ज्वाइन किया एंड आई डिड नॉट फाइंड एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो इसलिए मैंने राइट। बुक रीडिंग क्लब ओपन कर दिया। सो नाउ व्हाई बुक रीडिंग क्लब? बुक रीडिंग क्लब इसलिए क्योंकि आई हैव सीन अ मैसिव shift in myself through reading a lot of books। And now राइट। the book reading club is open for all। it's not only for the homemakers, because अगर सारी homemakers ही उसमें आती हैं तो what is the negative part? They all will have uh, a limited perspective, हम्म। because they have seen only this much of world। now राइट। if all the people from diverse places are coming into one room, all are sharing their perspectives, so these women also get evolved, उनके राइट। अंदर भी शेप होगा बहुत कुछ। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द बुक रीडिंग क्लब कि जो होम मेकर्स होंगी उनको तो इन एनी केस आई विल मेक श्योर दैट दे आर इन द दिस क्लब, बट आई एम ओपन टू हैव एनीबडी इन द बुक रीडिंग क्लब। रीजन बीइंग क्योंकि हम लोग सिर्फ बुक नहीं रीड करते हैं, सो व्हाई डिड नॉट आई लाइक अदर बुक रीडिंग क्लब्स, ये भी जान लो। क्योंकि मैं किसी भी बुक रीडिंग क्लब में गई, देयर वाज वन वेयर इन everybody was reading their own book, एक घंटे तक बस साउंड पीछे से म्यूजिक चल रहा है, एंड देन दे गो ऑफ, हम्म। ओके वी हैव रेड फॉर 30 minutes 1 hour एंड ओके बाय बाय। ठीक है। राइट। दूसरा बुक रीडिंग क्लब था जिसके अंदर दे वर रीडिंग द सेम बुक, बट वो रीडिंग करके बंद हो जाता था बुक क्लब। एंड हम्म। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर वाज, if I want to bring a shift in my life through that book, I need to reflect on what is written in the book। तो जब राइट। आप मेरे क्लब में जब आप आते हो तो यू कम इन द रूम, हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर आवर पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सर्टेन टॉपिक, राइट। पता चल जाता है। देन वी रीड द बुक, वी सी हाउ वेयर डू वी स्टैंड, हमारा पर्सपेक्टिव कितना ठीक था। सी वी आर नॉट देयर टू पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड एनीवन कि तुम्हारा तो हम्म। गलत था, तुम्हारा, इट्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि भैया मेरा गलत था ठीक था, अच्छा दिस इज हाउ इट इज। एंड वंस वी हैव राइट। रेड, देन वी अगेन discuss it to understand how can we shift our lives through what we have read। वाओ। And I've seen massive shifts there as well। And there are people who come in few they don't come every day, they come only like हफ्ते में एक बार दो बार कभी आएंगे, and then
the best part that I love is उस दिन वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो उनको जरूरत होती है. So I have not seen any person coming, even if anybody has come for one day of book reading, they have found a massive value in that, and they have taken something good out of it कि हाँ यार ये apply करती हूँ. So that's how it's working. अमेजिंग दैट. और कहीं ना कहीं आपको एक ब्रॉडन पर्सपेक्टिव मिलने लगता है, क्योंकि अभी से तो आप अकेले पढ़ रहे थे, आप सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव ले रहे थे. अब अभी See, साथ में I पढ़ते have तो आपको I दूसरे का have read पर्सपेक्टिव many भी books. मिलता है. I have read many books alone, and I know the way I am reading now. That has never happened. So हम So true. कितनी बार पेन पेपर लेके बैठते, बुक पढ़ रहे होते, बुक पढ़ते रहते और खत्म हो गई. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एक एक लाइन के ऊपर एक एक ये वर्ड क्या बोल दिया, क्या हो गया, अच्छा व्हाट इज द वन लाइन दैट वी लाइक्ड आउट ऑफ इट. वी आर गेटिंग इनटू डिटेल्स. किसी के साथ डिस्कस करने को एक भी बंदा आ जाए ना बुक रीडिंग क्लब में, इट बिकम्स ब्यूटीफुल. और अकेले आई हैव डन इट अलोन एज वेल. फिर मैं आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने तो एक्सप्लेनेशन फिर भी देनी है, जो मुझको पता है, जो मेरे को समझ में आया, मैं अपना पर्सपेक्टिव तो फिर भी दे देती हूँ. So it's like that. So it becomes This takes a lot of courage, I would say. Thank you so much. Tell me now, Drishti, you also tell me a little about, because if my audience see this, Instagram live, I want them to also know about you. What do you do, and where are you in life? Yes. So my name is Drishti, and I am a tarot card reader, healer, and a coach. So मैं जितना लाइफ को देखी हूँ, जितना मैंने समझा है अपनी लाइफ को, आई रियलाइज कि ना हम हमेशा ना अपने डिसीजन दूर पे थोपने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना है, यही करना है, ऐसा ही होना चाहिए. बट गोइंग इन लाइफ आई रियलाइज कि हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है. एज यू आर डिस्कसिंग इन योर बुक क्लब, राइट, कि आप अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस करो एक ही चीज का. तो आई रियलाइज कि हम सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है. तो उसको चलते ही टू हेल्प पीपल बिलीव इन देमसेल्फ, कि आप जो सोच रहे हो ना उस पर बिलीव करो. बहुत बार हम दूसरों की बातों में आकर ना गलत कुछ और कर देते हैं जो हमारे लिए वर्क नहीं करता. बट एज यू सेड, वी ऑल नो, हमें पता होता है हमारे लिए क्या सही है, बस हम सुनने को तैयार नहीं होते. तो आई एम समवन हु बिलीव्स दैट, ट्रस्ट दैट वॉइस इन यू, वो हमेशा आपको सही लीड करेगी. तो आई बेसिकली वर्क ऑन पीपल, ऑन इंडिविजुअल्स जो अपने आप को थोड़ा सा अपना ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं और अपने ही ट्रस्ट के थ्रू अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं. Wow, that's nice. That's nice. And on that, I remember yesterday only we read about it. Our body always gives us some signals which we do not Always. understand. And जब वो हम उनको cater नहीं करते उन signals को, then it becomes a scream in the body, which comes out in a form of या फिर तो emotions या फिर some kind of a disease. So that Yes. is a beautiful work, yeah. That is beautiful. And what is there any specific kind of people, kind in the sense that any kind of an age group of people whom you cater, or is there मतलब क्या एकदम narrowed down version क्या है with the people that you work? I work with people who want to grow in their life, and especially women. For me, I feel कि मैं, with women we connect very easily. So I connect with women a lot, and I say कि from the age around 20 to 23 से लेकर 40-45 तक I have the clients. तो उनका जो होता है कि वो खुद में build करना, वो एक result दिखता है. मेरे ख्याल से you should start working with the girls who are 17-18, because वहां से जो build होना शुरू हो जाता है ना अपने अंदर, and wrong decisions that you take, those are the ages when you take the majorly wrong decisions in life. वहां से start कर दो, Right. you are going to grow a lot. Congratulations on this, and I'm looking forward to have you as my guest in one of the Insta Live, so that you can talk a lot more about your this thing. Definitely. But yeah, before ending this live, I have some question for you. Like कि आप मेरी ऑडियंस हमें सुन रही है, उनके लिए आप क्या 3 एडवाइस देना चाहोगी जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सकती है? That is a nice question. All right, the three things: stop blaming, stop complaining, ठीक है, and start taking actions.
वाओ वाओ, ये सक्सेस प्रिंसिपल्स है। For me, yes. यस And I'm looking forward to work on women and to यस no women nahi, work on homemakers, and I want them to speak on my behalf कि मैंने इन चीजों पे काम किया with Karishma, and this is what I am today. So that is going to be डेफिनेटली amazing. डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन। Absolutely. Tathastu. Tathastu. Whatever I say. So it is the thing. The thing is, whatever you say, whatever you bring out of your mouth is going to come true. So be very mindful वाओ। of whatever you are saying. मैंने ये भी एक और चौथा दे दिया. Whatever you say. और हाँ, पांचवा भी दे देती हूँ. I am के बाद जो भी बोलोगे वो true reality of your life बन जाएगी. Be very mindful of whatever you bring out of this small mouth that you have. बहुत ध्यान से बोलना चाहिए. वो कहते हैं ना कि सरस्वती माता आके बैठती है आपके टंग पे एक बार तो अच्छा अच्छा बोलो, क्या पता कब कौन सी बातें सच होती ही जाए। So the thing is that you know what happens, दृष्टि, जब हम कुछ बुरा बोलते हैं ना, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं जब हम बहुत इंटेंसली हर्ट होते हैं, उस टाइम पे हम 100% उस इमोशन में होते हैं, and that's why we say that bad, and that's why it gets manifested fast. It is said कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी, तो जब 105 वो जो भी फ्रीक्वेंसी पे गाने आते हैं, 95.3 एफएम चलाने, तो 95.3 एफएम पे जाके ही वो चलेगा ना। तो अगर आपकी फीलिंग्स जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो अभी आपकी फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी यू आर हर्ट एंड यू आर दिस एंड दैट, एंड उसके ऊपर से आपने मुंह में से वो निकाल दिया, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू, तो इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट. And the problem is we are never itne khush, itne happy that we brag about ourselves. We say good things about ourselves. It never happens. And I am on a mission of, you know, getting this done now. कि हाँ तुम अपने साथ खुश रहो, you love yourself immensely so that you say only good things about yourself and you manifest only the good things in life. डेफिनेटली आई थिंक बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, यही एक कहीं ना कहीं बेस निकल के आ रहा है कि जितना आप सोच समझ के बोलोगे चीजों को, उतना ही अच्छा आप अपनी लाइफ को बेटर खुद क्रिएट कर पाओगे। भगवान ने भी हमारे को 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। करेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग, हमें बहुत इंसाइटफुल्स मिले, एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स फॉर स्टेइंग टिल नाउ। Thank you, Drishti, for inviting me, and trust me, while I was coming, we did not talk in the afternoon or morning, and I was like, well, I don't know what you're going to ask me. I don't know whether, you know, this is also my uncomfortable zone wherein people come to interview me. तुम क्या कर रही हो? It is so much easier for me to go and ask people, हाँ, what are you doing? What are you doing? What are you doing? And it was a little uncomfortable zone for me to go out of my comfort zone to talk about what am I doing. But thanks to you that you made me do it, and you asked me questions that were actually, you know, close to my heart, and there were times when I actually felt goosebumps as well, and you know, that hurt that homemakers can feel, वो कभी कभी अभी भी मेरे को फील हो जाता है कि यार ऐसे फील होता था, and that brings, you know, that makes my eyes teary and all of it, and but on this journey of becoming a coach, I've learned that I don't have to be sensitive to it. I have to be proactive towards हटाओing it, you know, clearing the space for people. Wow. Thank you so much for bringing me on your channel, and God bless you. Rise and shine. And I love the work that you are doing. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you so much. We loved it today. God bless you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.